UPSC is very unpredictable examination commission. अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि GS इज़ नॉट अ डेटरेंट फैक्टर फॉर यू एनी मोर. ठीक है, आपको सिर्फ अपने ऑप्शनल पे फोकस करना है एंड आपका GS एकदम रॉक सॉलिड हो जाना चाहिए. हम बहुत ज़्यादा समय देकर के ज़्यादा मार्क्स ले आए तो वो कोई बड़ी बहादुरी नहीं है, बट एक ऑप्टिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स ले आए, दैट इज द ब्यूटी. मटेरियल तो सबके पास है, पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट. सक्सेस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन. अगर आप ये सोच के चलेंगे कि नहीं यार मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं तो पीछे ही रह जाऊंगा, देन आप डेफिनेटली पीछे ही रह जाएंगे. वी हैव विद अस यशवी जैन. शी हैज secured all India rank 97 this year and she is next IAS foundation course student of GS batch. Today's session will be on selection of optional subject. This is very critical decision and this is the paper, optional paper, which is more scoring than the general studies paper. लाइए. Yes, we please come. Once again, congratulations. ले लो. So we will have a joint session by me and the Yashvi. We will go through some data. What are the marks of the highest scorer in each subject? How many students appear in which optional subject? What is the recent trend? And after that, we will run on through the next part of discussion. What factors should be considered while selecting the optional subject? And she will share her experience, I will share my experience, and put together it will be a joint experience. So इसका कहाँ है रन करने के लिए? इसमें नहीं लगाया पॉइंटर. This is just for a reference, a table of 2024 marks. This is for reference which can give you idea कि what is the scoring pattern in GS and what is the scoring pattern in the optional. This is based on the 2024 data. 25 का हम लोग अभी compile नहीं कर पाए. What you have to notice, let us take the average rank between 100 to 300. Optional, the scoring pattern shows it is around 55% was the score in the top rankers. But if you see in the GS, 36%, 44%, 36%, here you may find 40% score and here let us say 50 plus. This 10% difference in the scoring pattern, it reveals that optional selection is critical. Here you have more scope to add marks as compared to GS. But GS is common in prelims, so you cannot have a choice, but here you have a choice to opt optional of your preference. Betty, please. Now see one more data here, and this is from the report of UPSC website. 2023 and 2022 report is available in UPSC, and 24 report will be uploaded now because they upload once the results are declared. This is the number of students appeared from the political science. The highest number of students opting any optional is PSIR, and out of all the mains appearing candidates, nearly 19.5% students opt for the PSIR. The second highest opted optional is sociology. Third highest opted is anthropology. Fourth highest opted is geography. Fifth highest opted is mathematics. Sixth highest opted is history, and then public administration. So do not go in the number, go in your choice and your strength area. But more important is कि in optionals में score क्या है. अभी this is the like law is around 259 students appeared in 2022 and 222 students appeared in 2023. Medical science, agriculture, physics, and then mechanical engineering, civil engineering, and so on. Hindi literature also substantial good number 361. तो ये 20 ऑप्शनल की लिस्ट है. देयर आर मोर, उसमें और नंबर कम है. दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस.
कि हर ऑप्शनल से बच्चे बैठते हैं और हर ऑप्शनल में मार्क्स भी अच्छे आते हैं, बट सब ऑप्शनल सभी स्टूडेंट्स के लिए फिट नहीं है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट क्राइटेरिया यू शुड consider while selecting the optional. And see one more data here. This is the 2025 result, which the latest result. 2025 result में political science में the data which we have, I'm not saying कि this is absolute data. हो सकता है कि जो हमारे पास डेटा नहीं है उसमें कुछ इससे भी ज्यादा स्कोर वाले स्टूडेंट्स हों, but the data which we could get and we could see, 289 was the highest, 288, 282, 281, 281. This is the score in the PSIR from the data which we could collect, and these are their ranks and this is their score. ऐसा नहीं है कि इससे ऊपर इस टॉप 20 में टॉप 5 में नहीं है, बट उनके स्कोर हो सकता है इससे कम हो. When you see the sociology, in sociology same 283, 271, 262, 256, 253. Mathematics 299, 293, 285, 277. And then anthropology 303, 275. इससे भी ज्यादा हो सकते हैं किसी के, but the data we could not get, and so on. And then if you see the geography 271, you see the economics 286, 269, 268, history 271, 270, law 274, 255. engineering में देखें तो this is civil engineering 276, another civil 271, commerce 285, another commerce 267, medical science rank 1 Anuj 292, and geology 297. तो मार्क्स तो सभी में आ रहे हैं. एंड देन अदर्स लाइक पबैड 289, हिंदी लिटरेचर 273, फिलॉसफी 267, एंड कन्नड़ लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, एंड सो ऑन. वी कैन सी हियर कि ऑप्शनल में लगभग स्कोरिंग में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द स्केलिंग सिस्टम ऑफ यूपीएससी. There are some optionals which perform from last 7-8 years consistently, and that is why the students prefer those optionals. तो जो common optionals हैं like PSIR, sociology, anthropology, mathematics, history, geography, economics, ये हर साल consistently perform कर रहे हैं. There are some optionals which are opted by only those students who have specialization in those subjects. जैसे मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, एनी लिटरेचर है, और लॉ है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है. These optionals are opted by the students who are from that background, but the others which are popular, common, can be opted by anybody. ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग कैन नॉट बी ऑप्टेड बाय ए स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस, तो वो भी ले सकते हैं, मतलब यू आर फ्री टू ऑप्ट. बट व्हेन इट कम्स टू द कॉम्पिटेंसी, तो उस समय फिर आपको देखना है वेदर इट इज फिट फॉर यू और नॉट. ये डेटा है टॉप 25 का इस साल के, जैसे टॉप 25 रैंकर्स ऑफ सिविल सर्विस 2025. रैंक 1 मेडिकल साइंस, रैंक 2 सोशियोलॉजी, रैंक 3 कॉमर्स, रैंक 4 इकोनॉमिक्स, रैंक 5 सोशियोलॉजी, PSIR. ये दोनों नेक्स्ट IAS के स्टूडेंट है, ये विभास झा के स्टूडेंट हैं, और ये जेनिया इज PSIR जो पीयूष चौबे जी की स्टूडेंट है. राइट. एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, PSIR, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, मैथमेटिक्स, ये टॉप 10 के हैं, टॉप 12. देन अनदर टिल टॉप 25 सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, PSIR, इकोनॉमिक्स, सो ऑन. इलेक्ट्रिकल भी इसमें है, हिस्ट्री भी है, केमिस्ट्री भी है, सोशियोलॉजी तो मल्टीपल है बिकॉज नंबर ही ज्यादा होता है. सबसे ज्यादा टॉप 25 में सोशियोलॉजी वाले थे, सेकंड में PSIR था, थर्ड में इकोनॉमिक्स, फोर्थ में हिस्ट्री. बट रेशियो आपने देख लिया कि आउट ऑफ टोटल 20% लोग तो PSIR ही ले रहे हैं, 15% लोग सोशियोलॉजी ले रहे हैं. सो व्हेन द नंबर इज मोर, रिफ्लेक्शंस आर मोर. सो दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस कि ऐसा नहीं है कि हर साल
किसी एक पर्टिकुलर टॉप ऑप्शनल से ही टॉप रैंक आ रही है. ईयर ऑन ईयर यू विल फाइंड this year topper is from medical science, and last year topper was from the other subject, and before that the topper was from other subject. And optional is important and critical, but it is not the only area which gives you the top rank. So before we proceed to the next part, I also suggest you, optional selection मतलब सबसे important factor होता है interest. My interest, in which subject I can do best, irrespective कि वो कम लोग लेते हैं या ज्यादा लोग लेते हैं. And my skills, like some of you may be very good in mathematics or may be good in solving problems, so you may go for the subjects which are conceptual. And maybe engineering, physics, chemistry, even geography, these are conceptual subjects. But many of you will be good in writing, in articulation, in expressing your thoughts in your word. In your words, it means humanity subjects आप ले सकते हैं. So you have to examine yourself कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा क्लोज होगा. फिर स्कोरिंग हो गया, फिर गाइडेंस मटेरियल एंड सो ऑन. एंड नाउ यस वी विल स्पीक. Hi, good evening, everyone. I'm assuming there's everyone, whoever's present here must be attempting for 2027 or 28. And optional can be a really crucial part, not can be, is a crucial part, but choosing it can be something which becomes very confusing at times. Graduation का ले subject या जो optional as लोग बोलते हैं चल रहा है आजकल वो लें, कौन सा optional लें, so that becomes really crucial. Now optional, it makes a huge part of your main score. 500 marks out of 1750 goes to your optional. So choosing it carefully is not just important to get your name in the list, but also to get your name in that top 100 of the list. Okay, definitely, like sir said, there are other factors which also come into play. But if your score in optional is poor, your chances of being in that top 100 automatically decreases a lot. Okay, so finding the optional which is good for you is important. You have to choose an optional which is not just running in the market, but which fits your skills, your aptitude, your area of interest. Now, when I chose my optional, there were 5 things that I considered and which I believe everyone should consider while choosing their optional subject. So, in no particular order of importance, first becomes your resources, the study material which you need for your optional. Okay, so are there enough standard books available? Do you have access to topper notes? Do you have access to topper answer copies? Okay, so do you have access to other guidance books? So this is very important while you choose your optional, so that you don't have to struggle while preparing your notes. Okay, you easily have it all. You just have to integrate it while making your own notes for it. Okay, now second is the guidance, mentorship. ओके, अब मटेरियल तो सबके पास है, पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. आप 1000 पेज की बुक लेके पूरी तो नहीं रट सकते, उसमें से क्या इम्पॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है अगर आपके पास एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटर हो तो. ठीक है, हु कैन गाइड यू कि अच्छा आपको एक टॉपिक में से भी क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी है. ठीक है, along with this, your test series or the classes that a lot of people take for optionals. So you need to choose a good test series as well as good classes which will guide you in the right direction for your optional. Okay, aapko, you don't want to be lost in the jungle of resources and material. You want to pinpoint your focus in the right direction. Okay, and right resources and right guidance does that for you. Now, third thing is your interest, like sir said, which is definitely very important. Now,
if your optional is something which bores you, which you can't sit with for more than 2 hours, then there's no point of doing that optional, because your optional is, it becomes like your best friend when you're preparing. Okay, GS तो आप prelims में पढ़ेंगे, mains में पढ़ेंगे, end में हो ही जाएगा, but optional is something which you will have to dedicate a lot of time to it. You'll have to specifically sit down and study it for hours. And if you do not have interest in your optional, it becomes very, very difficult to do it. Okay, now fourth thing is if you have the aptitude for that optional. Now third and fourth might seem similar but they're different. एक होता है आपको इंटरेस्ट है किसी चीज में, एक है उसमें आपका एप्टीट्यूड है या नहीं. आई कैन लाइक मैथ्स बट आई माइट नॉट बी गुड इन मैथ्स, राइट? सो यू नीड टू नो कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है क्या आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. नाउ हाउ डू यू डिसाइड टू डू दैट, लाइक हाउ डू यू डिसाइड कि आप उस चीज में अच्छे हैं या नहीं. सिलेबस एंड PYQs. ओके, यूपीएससी हैज डन वन गुड थिंग, उन्होंने बहुत ब्यूटिफुली मेंस का सिलेबस डिफाइन कर रखा है. ठीक है, सो यूज दैट टू योर स्ट्रेंथ. उसको आप जो भी आप ऑप्शनल डिसाइड करते हैं उसका सिलेबस उठाइए, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, समझिए, एंड उसके बाद उसी सब्जेक्ट के PYQs देखिए. ठीक है, आपको क्या लगता है कि ऐसी अगर आपके सामने ऐसा पेपर आएगा तो क्या आप ये सारी चीजें टैकल कर पाएंगे? ठीक है, इफ द आंसर टू दैट इज येस, you don't have to have studied everything for to do this, but you need to at least understand कि आपको वो optional आप understand कर पाएंगे या नहीं. ठीक है, so उसके लिए your syllabus and your PYQs become very important to make you understand if this is your cup of tea or not. Okay, and lastly I would suggest is understanding previous year trends. नाउ एवरेज स्कोर एक ऑप्शनल में कितना रहता है? ठीक है, लाइक सर सेड देयर इज नो बैड ऑप्शनल. एवरी ऑप्शनल में यू विल फाइंड पीपल हु आर स्कोरिंग वेल. द प्रोपोर्शन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज बिकॉज कुछ ऑप्शनल में ज्यादा लोग बैठते हैं, कुछ ऑप्शनल से कम लोग बैठते हैं, तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शन वाइज नंबर वेरी करेगा. ठीक है, लेकिन एवरेज स्कोर एक ऑप्शनल का क्या है वो शुड बी अ फैक्टर फॉर यू टू डिसाइड विच ऑप्शनल you should take. Okay, so now these 5 factors become very important when you want to decide your optional. Nobody can do it for you but you. And I would suggest don't take anyone's advice. ठीक है, लोग बोलेंगे कि यार ये ऑप्शनल अच्छा है, इसमें इसके इतने मार्क्स आए, इसमें उसके इतने मार्क्स आए, बट बी योर ओन जज. You, nobody knows you better than you. ओके, सो आपका ग्रेजुएशन किस में है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप कौन सा सब्जेक्ट हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट. अब मेडिकल साइंस में जिसके अच्छे नंबर आए वो तो बोलेगा मेडिकल साइंस ले लो, बट आप पढ़ सकते हैं मेडिकल साइंस या नहीं इज वॉट यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, राइट? सो you have to be very smart when you choose your optional. Don't be emotional when you choose your optional. Be very practical and be very rational when you choose your optional. Okay, another thing I will say that you should consider is the syllabus of the optional, which I have mentioned, but I'm mentioning it separately because some optionals have a very vast syllabus. Some optionals have very defined, very closed, very एक दो बुक्स में खत्म हो जाने वाला सिलेबस. ठीक है, सो वो भी आपको देखना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ किस चीज़ के अंदर लाई करती है. ठीक है, कि आप इतना बड़ा सिलेबस पढ़ सकते हैं या आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं उसको टैकल कर पाएंगे अलॉन्ग विद GS. सो दीज आर द फैक्टर्स विच आई रियली बिलीव यू शुड कंसिडर वाइल यू चूज योर ऑप्शनल एंड plan it out very well. If you're preparing for 2027, this is the correct time where you should start focusing on your optional. Okay, by December you should be absolutely thorough with your optional. Your notes should be sorted in one place. You should be done with at least 2 readings by December. From now till December you have enough time to prepare your optional well. So choose it carefully, and if you want to sit for 2027, this is the right time to start. Finish by December so you can focus on your prelims from January onwards without any tension कि मेरा optional नहीं cover हुआ है, how will I do it if I clear mains. ठीक है, so this is a basic strategy that you should follow if you're planning on giving 2027 attempt, in my opinion. यशवी ने एक बात कही कि you should not be very emotional to these subjects. This really fits to the professional people, especially those who are from engineering background. हम सोचते हैं 4 साल बीटेक करा है, सिविल पढ़ा है, अब ऐसे कैसे छोड़ दें? 4 साल दिए हैं, अब ऐसे कैसे छोड़ दें? इसी को लेके आगे चलते हैं. But here it is not the story of which subject I have studied and that I have to cultivate in my exam.
यहाँ पर पूरा गेम है सिलेक्शन, बट एट द सेम टाइम ऑप्टिमाइजेशन. माई एफर्ट्स शुड बी बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड. हम बहुत ज्यादा समय देकर के ज्यादा मार्क्स ले आए तो वो कोई बड़ी बहादुरी नहीं है, बट एक ऑप्टिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स ले आए, दैट इज द ब्यूटी. Those who come from engineering background, medical background, law background, इन लोगों के लिए अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. बिकॉज आई कम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग एंड आई नो दी क्रक्स ऑफ सिलेबस. एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक मुझे याद है कि सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक में आई अपीयर्ड इन यूपीएससी 2 decades बैक, और उस समय 2 ऑप्शनल होते थे, वन वाज माई सिविल, अदर वाज ज्योग्राफी. मैं दोनों ऑप्शनल को कंपेयर करता था और मुझे ऐसा लगता था कि ऑप्शनल में ज्योग्राफी हैज लेसर सिलेबस देन दी सिविल, लेकिन मेरा इंटरेस्ट सिविल में था. एट द एंड में सिविल में मेरे मार्क्स ज्यादा आए. तो आपको यह देखना है कि आपने बीटेक करा है तो उस सब्जेक्ट में कितनी डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको है. इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स लाइक इंजीनियरिंग सर्विस, गेट एग्जामिनेशन, या मेडिकल वालों ने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा है, तो यू हैव ऑलरेडी डन ए थॉरो स्टडी. देयरआफ्टर यू कैन बिल्ड अपॉन इट. बट if you are engineer by degree and you have completed just your BTech and thereafter you started your UPSC journey, तो आपके लिए तो इंजीनियरिंग भी नया है और कोई दूसरा ऑप्शनल भी नया है. देन यू हैव टू कंपेयर कि कहां पर हम कम एफर्ट्स दे करके ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, कहां पर हमें टाइम कम देना पड़ेगा. सो अगर आपका जैसे इनका बैकग्राउंड साइकोलॉजी का था, यू ऑप्टेड साइको, psychology. I'm from a मेडिकल बैकग्राउंड. अच्छा, इनका बैकग्राउंड मेडिकल था बट सी ऑप्टेड साइकोलॉजी. मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग था, आई ऑप्टेड फॉर सिविल इंजीनियरिंग. राइट. तो आपके सामने अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जिन्होंने अपना कॉलेज का पढ़ा हुआ सब्जेक्ट छोड़ करके कोई नया ऑप्शनल ऑप्ट किया. So don't be very emotional to the background, but yes, जैसा इन्होंने बोला ना कि सिलेबस, ये सिलेबस पढ़ना है आपको कि how much time it takes. Those who are from mechanical, electrical, civil, engineering के ये 3 हो गए. आप इनके सिलेबस को अगर आप देखोगे, this may be 2.5 to 3 times than the syllabus of sociology, anthropology, political science. इनसे 2.5 गुना ज्यादा हो सकता है, 3 गुना ज्यादा हो सकता है व्हेन इट कम्स टू द वॉल्यूम. बट दोनों के अलग अलग एफर्ट्स लेवल हैं. जब आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो यू डोंट रिक्वायर मल्टीपल रिवीजन्स, रादर यू रिक्वायर प्रैक्टिस. फॉर्मूले याद कर लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो प्रैक्टिस. तो ऐसा भी नहीं है कि वॉल्यूम मतलब एफर्ट्स उसी रेशियो में होंगे, ऐसा भी नहीं है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल हैं जिसमें एक आप सिंगल नोटबुक बनाई और आपने सारे फॉर्मूले उसमें लिख लिए और सारे फॉर्मूले याद कर लिए और प्रैक्टिस कर ली, तो बड़ा सब्जेक्ट भी कंप्रेस होकर के छोटे में आ सकता है. बट ये उन लोगों के लिए फिट बैठता है जिन लोगों ने उस सब्जेक्ट को एक बार तो अच्छे से पूरा पढ़ा है. देन यू कैन कंप्रेस एंड यू कैन कंसोलिडेट एंड यू कैन रिवाइज इन लेस टाइम. बट इफ यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम तो पूरा तो पढ़ना ही पड़ेगा. तो एक फैक्टर ये. दूसरा जो अभी इन्होंने बात की थी ना कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ, विच इज मेंशन्ड हियर, स्किल, बेस्ट फिट टू स्किल्स. ये वो स्किल्स होती है कि जो यूनिक है. आई एम ए पर्सन हु लाइक्स मोर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, बट आई डोंट एंजॉय राइटिंग थ्योरेटिकल और राइटिंग द एनालिटिकल थिंग्स. दिस इज माई ह्यूमन बिहेवियर. तो मेरे लिए फिर ये सब्जेक्ट कौन सा अच्छा होगा, ये मेरे ह्यूमन कैरेक्टर पर डिपेंड कर रहा है. सो आई मे परफॉर्म बेटर इन इंजीनियरिंग और इन ज्योग्राफी विच इज पार्शली कॉन्सेप्चुअल, और इन द फिजिक्स और इन मैथमेटिक्स. आई मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन साइकोलॉजी, आई मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन सोशियोलॉजी. तो मेरे लिए वो सब्जेक्ट ठीक नहीं है, वैसे सब्जेक्ट अच्छा है. इसलिए आप लोगों में से हर इंडिविजुअल एक यूनिक पर्सनालिटी है. इसलिए सबसे पहला टास्क यह है कि यू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो फाइंड योर वीकनेसेस.
फिर आप देखो कि मेरे लिए किस नेचर का सब्जेक्ट ज्यादा बेटर होगा विच आई शुड स्टडी। और एक जो इन्होंने चीज बोली ना यशवी ने, कि सब्जेक्ट वो होना चाहिए जो जिसको आप एंजॉय करें, क्योंकि जीएस सबको पढ़ना है, मैंडेटरी है, वेदर यू हैव इंटरेस्ट और नॉट डजंट मैटर, देयर इज नो चॉइस। बट ऑप्शनल में आपके पास चॉइस है, यू कैन चूज ऑप्शनल ऑफ योर इंटरेस्ट। और जब पढ़ते पढ़ते जीएस को थक गए या आपको ब्रेक लेना है या बाय इंटरेस्ट आपको ट्रांजिशन लेना है, देन इट शुड बी अट्रैक्शन, इट शुड नॉट बी कंपल्सन, कि वो सब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट करता है पढ़ने के लिए, एक ऐसा सब्जेक्ट जो जिसको पढ़ करके आपको अच्छा लगता है, मजा आता है। सो यू इन्वेस्ट योर टाइम विलफुली, नॉट थ्रू द कंपल्सन। तो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे, वेयर यू कैन रीड मल्टीपल टाइम्स। क्योंकि ऑप्शनल आप ये देखिए कि अभी आप पढ़ोगे, अब दिसंबर तक बताया इन्होंने कंप्लीट करना है, फिर कुछ पीरियड के लिए आप प्रीलिम्स में एंगेज हो जाओगे, फिर इमीडिएटली आफ्टर दैट यू हैव टू स्टडी। एक अटेम्प्ट में भी मिनिमम 3 राउंड ऑफ रीडिंग लगेंगी, राइट? 2 रीडिंग्स बिफोर द प्रीलिम्स एंड 1 रीडिंग आफ्टर द प्रीलिम्स। उसके बाद फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रैक्टिसिंग, ये पीवाईक्यूज एंड सो ऑन। एक अटेम्प्ट 3 टाइम्स, and if you write the next attempt, then add 2 more times or 3 more times, 5 to 6 times in 2 attempts. Invariably most of the top rankers या most of the selected candidates take 2 attempts or maybe more even. तो इसका मतलब 6 से 7 रीडिंग्स आपको देनी पड़ेंगी। तो ये कंपल्सन से नहीं होगा, ये इंटरेस्ट से होगा। इसलिए सब्जेक्ट वही लीजिए जहां पर आपको खुद इंटरेस्ट डेवलप हो, और ऐसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना ये आपको करना है, बिकॉज इतने सब्जेक्ट्स हैं और इतने सब्जेक्ट्स में इन दिस क्लास इटसेल्फ देयर विल बी पीपल हु विल हैव एटलीस्ट 20 ऑप्शंस। ऐसा तो है नहीं कि इनमें से सभी लोग 1 या 2 ऑप्शनल में चले जाएंगे, इसलिए आपको एफर्ट करना है। इमोशनल वाली जो बात की है ना, मैंने भी ये बात की है आपको कि इमोशनल बिल्कुल मत होइए कि मैंने बीटेक में, बीकॉम में, बीए में, बीएससी में ये सब्जेक्ट पढ़ा तो यही लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं फैक्टर विच इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट बट यस एट टाइम इट बिकम्स यूजफुल, कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जीएस पेपर में, ऐसे पेपर में भी एड ऑन कर सकता है। अगर आप 2 ऑप्शनल में से स्टक हो जाते हैं कि आइदर एक्स और वाई, तो फिर आप देख सकते हैं कि एक्स का जीएस में क्या यूज है, एक्स का एसए में क्या यूज है, वाई का क्या यूसेज है, फिर आपको लगता है कि विच कैन बी अ बेटर। पीवाईक्यू इज द बेस्ट वे टू अराइव इनटू कंक्लूजन, कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, फिर उससे पीवाईक्यू सॉल्व किए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के आए, फिर आपने उसको लिखा, फिर देखा कि वेदर आई कैन डू इट और नॉट। फिर भी लगता है कि इतना पढ़ने के बाद भी, एक चैप्टर पढ़ने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो दैट सब्जेक्ट मे नॉट बी फिट फॉर यू। इसलिए ये होमवर्क करना है। तो होमवर्क पहला हो गया, माय वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी आई एम, कि मुझे साइंस सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट क्या अच्छे लगते हैं, क्या पढ़ने में। अगर आप दोनों में कंफर्टेबल हैं तो फिर देखिए सिलेबस। सिलेबस आपने जब देखा कि कौन सा रीचेबल है, स्कोरिंग है, फिर आपने देखा कि उसमें स्टडी मटेरियल, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, फिर सपोर्ट सिस्टम ये अवेलेबल है कि नहीं है, एंड एट द सेम टाइम यू हैव सीन कि इसमें एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। इट्स नॉट द हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट तो एक ही ला रहा है ना, और इस साल केमिस्ट्री में 324 नंबर मान लीजिए आ गए, तो जरूरी नहीं कि अगली बार भी 324 आ जाएंगे। सो दैट डोंट गो ऑन हाईएस्ट, बट यू कैन ऑलवेज सी कि हाँ इस सब्जेक्ट के एवरेज स्कोर इस सब्जेक्ट से बेटर है, तो हम इस पर देख सकते हैं। बट दिस डेटा आपको एनालाइज करना पड़ेगा यूपीएससी की रिपोर्ट से, बट वो रिपोर्ट भी 2 साल पुरानी मिलेगी, यूपीएससी की वेबसाइट में लेटेस्ट नहीं मिलेगी। बट स्टिल दैट कैन बी अ फैक्टर, बट दैट इज नॉट अ सोल फैक्टर, दिस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स। तो उसको देख लिया। और इस सब के अलावा जैसे आपने ये कंक्लूड कर लिया कि ये 2 ऑप्शनल्स हैं, इनमें कंफ्यूजन है, एलिमिनेशन टेक्निक पे जाइए कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बट आप 2 पर आ गए कि इन 2 में से कोई एक चूज करना है। अब 2 में अगर कंफ्यूजन है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि दोनों ऑप्शनल का एक एक चैप्टर पढ़ लो, एक चैप्टर इसका पढ़ा, एक चैप्टर उसका पढ़ा, 2 में से एक ही तो वेस्ट जाएगा, एक तो आप ऑप्ट कर ही लोगे। या फिर 5-5 लेक्चर किसी टीचर के देख लो, 2-2 लेक्चर देख लो,
कि वो कैसे सब्जेक्ट मुझे समझ में आ रहा है, फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन आए हों उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। फिर लगता है कि जिस सब्जेक्ट में आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो या ज्यादा आपको ठीक लगता है, उन दोनों में से एक को ऑप्ट कर सकते हैं। बट दिस इज व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन टू, बट इफ यू हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड वन आउट ऑफ ऑल, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इन फैक्टर्स को लेकर के चल सकते हैं। या So, जो सर ने कहा, I'll just share my own experience of how I chose my optional because I come from a medical background. I'm a dentist by educational qualification, and my graduation subject does not fall in any of the optionals which UPSC provides. So, I was stuck between psychology and anthropology. And psychology because that was my area of interest. I had studied in 11th and 12th, and anthropology because मोस्टली मेडिकल वालों को बोलते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी ले लो, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू manage the subject. So I was confused between these two options when I started my preparation. So how did I navigate between these two was, first of all, I went through the syllabus. Psychology obviously seemed more familiar to me. Anthropology was very alien. एक दो topics medical से related थे, but it's a lot of different things which we have to study in it. Second was again going through PYQs, which I did. So again, anthropology seemed very alien to me. Psychology seemed something which I felt I could manage. Third was going through certain YouTube videos of both psychology and anthropology to understand what UPSC demands from each of these subjects. Right. Now, anthropology average score is relatively higher as compared to psychology, but anthropology was something which bored me to death. When I saw its videos, I could not keep up. मेरे को नींद आती थी, मेरे से नहीं पढ़ा जाता था वो. I tried reading its book as well. Okay, and I was like कि जो चीज़ मेरे से पढ़ी ही नहीं जा रही है, वो मैं जितना भी पढ़ लूँ, मेरे नंबर कैसे आएंगे उस चीज़ के अंदर, जिस चीज़ को मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ. Right. So I decided to divert my attention to psychology, and I thought ठीक है, difficult है, average score कम है, but अगर मैं मेहनत करूँगी तो ऐसा नहीं है कि इसमें score नहीं आता है. There are toppers who have even scored more than 300 in psychology. So if they can do it, then with the right amount of effort, I'm pretty sure कहीं ना कहीं आसपास पहुंच जाऊंगी शायद. Right. So that is how I began my journey of psychology. I did self-study for psychology, but I took a test series in the end. Did most मतलब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, टॉपर नोट्स पढ़े, खुद से कंसोलिडेट करके सब कुछ मैंने खुद प्रिपेयर किया फॉर साइकोलॉजी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि देयर इज नो बैड ऑप्शनल. डू नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप विच पीपल सेल इन द मार्केट कि ये ऑप्शनल खराब है, ये ऑप्शनल खराब है. कोई भी ऑप्शनल खराब नहीं होता है. इट्स अबाउट द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू आर विलिंग टू पुट इन एन ऑप्शनल. So coming from a completely different background, if I could make it with psychology in under top 100, I'm pretty sure you guys can also do the same thing with the right amount of, with the right mindset, with the right approach, with the right strategy. So I don't know how many of you will follow it, but it's a suggestion. If any of you is like confused between an optional or two optionals, take this week. Okay, this week devote your time to deciding your optional because it will play a very crucial role in the next coming months in your preparation. Okay, ये वीक लीजिए, पूरा सिलेबस अच्छे से देखिए दोनों ऑप्शनल्स का, वर्ड बाय वर्ड. ओके, डोंट जस्ट ऊपर से नहीं, रीड बोथ द सब्जेक्ट के ऑप्शनल अच्छे से, द सिलेबस अच्छे से. ओके, वंस यू हैव डन दैट, टेक अ स्टैंडर्ड बुक. हर ऑप्शनल की एक स्टैंडर्ड बुक जरूर होती है, ठीक है. सो पिक अ स्टैंडर्ड बुक एंड जैसे सर ने बोला, एक या दो चैप्टर्स पढ़ने की कोशिश करिए. यू डोंट हैव टू रीड द फर्स्ट चैप्टर्स, मे बी स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल, ठीक है, बिकॉज यूजुअली स्टार्टिंग के चैप्टर सभी ऑप्शनल के बोरिंग होते हैं, ठीक है, मतलब दैट इज व्हाट आई हैव सीन. सो स्टार्ट इन द मिडिल, ठीक है. कोई भी ऑप्शनल, जो भी दो ऑप्शनल है, उनको आप दो चैप्टर्स बुक में से पढ़ने की कोशिश कीजिए. देन जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, उन चैप्टर्स के PYQs देखिए, उन चैप्टर से क्या PYQs आए हैं, ठीक है. Try and write them down. Even if you can't write down their answers, brainstorm their answers from what you have read. Okay, and self analysis करिए कि आप किस ऑप्शनल में बेटर
कर पाए थे, कौन सा ऑप्शनल आप कौन सा सब्जेक्ट आपको बेटर समझ आया था और कौन सा ऑप्शनल आपको लगा था कि हाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर एटलीस्ट 1 to 2 years तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा वो, राइट? सो डू दैट, एंड वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन इट और relatively मे बी आप 80% आपका माइंड मेकअप हो चुका है, देन लुक फॉर रिसोर्सेज एंड गाइडेंस फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल, प्लस एवरेज स्कोर क्या चल रहा है उसका, ठीक है? नाउ वंस यू हैव डन दिस सिक्वेंशियली, यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर माइंड कि क्या आप ये ऑप्शनल आपके लिए सही है कि आपके लिए सही नहीं है। आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाएगा, एप्टीट्यूड पता चल जाएगा, गाइडेंस पता चल जाएगी, ठीक है? सो don't be in a rush to choose your optional, follow a sequential manner to choose your optional and then start preparing it with a proper strategy. Okay, so I believe that is how I went about my optional. That's my personal experience. वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं होती है यूपीएससी में, मैं हमेशा बोलती हूँ, बट इन केस इफ दिस इज समथिंग विच रेजोनेट्स विद यू एंड इट हेल्प्स यू चूज अहेड इन लाइक इन योर प्रेपरेशन, देन आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट. अभी इन्होंने इतना स्ट्रैटेजी और गाइडेंस की बात की है. स्ट्रैटेजी का जो परफेक्ट एग्जाम्पल है, यू कैन जस्ट see the recent elections. I'm not political, so do not consider me that I am putting a political remarks or this, but I'm talking about the success. Success is all about your strategic preparation. Even with the lesser efforts, with managing your study in a better direction can reveal you the better result. इसलिए strategy is very important. And the good resource, good guidance can make a difficult subject easier and more scoring than an average than easy subject. तो एक ये भी फैक्टर कंसीडर करना अपने ऑप्शनल में कि कहाँ पर रिसोर्सेस अच्छे हैं और कहाँ पर गाइडेंस या टीचर. अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो एनी सब्जेक्ट इज इक्वली गुड, बट अगर आपको विद असिस्टेंस करना है तो फिर कोच या गाइडेंस मेक्स अ डिफरेंस. कि जिस सब्जेक्ट में ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे एग्जाम्पल्स कि कम एफर्ट में भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट आसान हो जाता है. वो इसलिए होता है कि जिसने पढ़ाया या जो उन्होंने कंटेंट दिया वो बहुत रिलेवेंट था और बहुत अच्छे से समझा दिया. तो आपके अपने एफर्ट्स कम हो गए, टाइम कम लगा और कम टाइम में आपने अच्छे से परफॉर्म कर दिया. 2011 के पहले देयर यूज्ड टू बी 2 ऑप्शनल्स और उस समय फर्स्ट ऑप्शनल वाज पार्ट ऑफ प्रीलिम्स बट सेकंड ऑप्शनल वाज ओनली पार्ट ऑफ मेंस. तो एक ऑप्शनल तो सबका तैयार होता था क्योंकि वो प्रीलिम्स का पार्ट था. सेकंड ऑप्शनल लोग प्रीलिम्स एग्जाम के बाद ही लेते थे. कई लोग ऐसे थे जो बाद में लेते थे, कुछ जो सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट वाले उनका पहले फिर डिसाइड होता था. और उस समय कुछ ऑप्शनल ऐसे थे उसमें साइकोलॉजी भी एक था और उस समय बहुत छोटा सिलेबस था साइकोलॉजी का. अब तो सिलेबस बहुत बढ़ गया, आप पुराना देखोगे ना तो अटेम्प्ट 5 आउट ऑफ 12. और एक होता था पाली लिटरेचर. पाली लिटरेचर इज कॉमन विद दी संस्कृत और पाली भाषा किसी को नहीं आती थी, लेकिन पाली लिटरेचर लेने वाले 15 से 20% स्टूडेंट्स होते थे और 1.5 महीने में रटा और उसको लिख करके एग्जाम में आ गए. 300 का उस समय होता था, अब 250 का होता है. 300 में से 250 नंबर लाने का टारगेट होता था और 2 महीने पढ़ करके सिर्फ पाली लिटरेचर या फिर साइकोलॉजी या ऐसे सब्जेक्ट, उस समय साइको का काफी ऑप्शनल का सिलेबस कम था, ऐसे सब्जेक्ट ही ऑप्शन होते थे कि इनको लेना है, पढ़ना करके जाना. उसका रीजन क्या था? गाइडेंस. और उसका रीजन था रिसोर्सेस. विद टाइम जब यूपीएससी ने देखा कि अरे ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, सिलेबस को फिर मॉडिफाई करा, फिर सबका पैटर्न सेम कर दिया. अब उस समय मैथमेटिक्स में फिजिक्स में भी क्या होता था, अटेम्प्ट 5 आउट ऑफ 12. और 5 आउट ऑफ 12 में भी क्या होता था कि 2 एरिया आप छोड़ के जा सकते हैं, तैयार ही नहीं करना. लेट्स से कि कैलकुलस नहीं पढ़ना तो अटेम्प्ट नहीं करना तो नहीं पढ़ना. दैट वाज वेरी इजी. सो दैट वाज द टाइम. नाउ every subject has uniform pattern and number of questions to be attempted is same.
और रिस्ट्रिक्टेड चॉइस है, यू मस्ट बी अवेयर कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, यू हैव द टू सेक्शंस 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. These are the 8 questions and you have to attempt 5. इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 is mandatory, question number 5 is mandatory, first question from each section is compulsory. तो आपके पास restricted choice अभी बची, but there is one more guideline, not less than 2 questions from each section. तो इनमें से एक आपको और अटेम्प्ट करना है. So let us say you opted for 4 and you opted here for 7. अब आप लास्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास ओपन चॉइस है कि आउट ऑफ रिमेनिंग 4 यू कैन ऑप्ट एनीवन. तो यहां पर चॉइस ही लिमिटेड है. अब चॉइस जब लिमिटेड है और विद इन क्वेश्चन नंबर 5, विद इन क्वेश्चन नंबर 7, विद इन क्वेश्चन नंबर 8 एंड एवरी क्वेश्चन देयर आर 4 सबसेक्शंस, 3 सबसेक्शंस, 5 सबसेक्शंस और वो अलग अलग चैप्टर के होंगे. देयर इज नो स्कोप यू कैन लीव द सिलेबस नाउ. इसलिए जब आपके पास स्कोप है ही नहीं सिलेबस को कुछ पार्ट छोड़ने का, इसलिए पूरा सिलेबस करना है. अगर पूरा सिलेबस करना है इसका मतलब है कि सिलेबस ज्यादा है या कम है ये मैटर करता है. उस समय मैटर नहीं करता था क्योंकि आपके पास ओपन चॉइस थी, टोटल 5 करना आउट ऑफ 12. अब आपको पता है कि सब सेक्शंस उसमें नहीं है तो इट वाज इजियर. सो इस समय सिलेबस एज ए होल मेक्स ए डिफरेंस क्योंकि आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट इग्नोर एनी वन एरिया और एनी वन सब्जेक्ट टॉपिक क्योंकि कंपलसरी में भी उसका पार्ट हो सकता है या जिसमें आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें भी सब सेक्शन हो सकता है. राइट. कितने लोग इसमें से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं? राइट. एंड एनी वन ऑफ यू आर थिंकिंग टू गो फॉर इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल? कोई नहीं सोच रहा है. आप लोगों को लगता है शायद इंजीनियरिंग बहुत डिफिकल्ट है ना, इसलिए इंजीनियरिंग सर्विस की वजह सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू कर दी है. कंप्यूटर साइंस वालों के पास तो ऑप्शन नहीं था, बट यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग सर्विस. ऐसा नहीं है. इट्स अ डिग्री इन इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड, नॉट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और डिग्री इन सिविल. ठीक है. एनीवे, सो द क्वेश्चन इज रूल्ड आउट बट इट इज अ गुड डिसीजन क्योंकि इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस तो वैसे भी नहीं है, बाकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है. But when we see the syllabus of the technical subjects, it is wide. There is no doubt in that. It may be good optional for those who have already prepared for the ESE type examination. उनके लिए ठीक है, उसके ऊपर build-up करना है. But if you are starting from scratch, I think with that kind of effort, with 50% efforts, you can score same marks here. I will also tell you what are the optionals which Next IAS is offering, just for your information. We have here sociology, Raj Rai is taking. He takes the society portion in GS also. PSIR is taken by Piyush Chaubey. He takes the part of the polity. And economics is taken by Dr. Vibhas Jha. You are all aware. He takes the economy in GS. Then history is taken by Mr. Hemant Jha. He is very senior person, very good teacher. Then anthropology is taken by the Dr. Sudhir. He is a very good teacher. Mathematics is taken by Mr. Avinash. He was IES. He resigned. He is from IIT. So Avinash Singh. So Avinash takes the mathematics. This is the area. Geography till last year it was taken by the Alok Ranjan sir. He has taken the retirement from the teaching. And he has opened the colleges in his home place. So this will be taken by Mr. Himanshu Sharma. Himanshu Sharma is a teacher who was running guidance नाम से इनकी coaching होती थी. Now he is common part of the Next IAS. So Himanshu Sharma will be taking geography. We are introducing law this year. And this law will be taken by Mr. R.K. Gupta. He was the rank 1 in CLAT PG and IRS officer. He has completed his service. So he is going to take the R.K. Gupta and Mr. Dinesh. So these are the two people who will be sharing the law optional. And law optional we are introducing first time, and these remaining 7 optionals we have been running. We are also introducing Hindi literature. But that Hindi literature will be available offline from Jaipur Center and
will be available online from here, but all these are the others, remaining 8 optionals here. Next IAS के students जो लोग भी हैं उनके लिए advantage क्या है कि the timings will not clash. We have fixed schedule of all the optionals from 3 o'clock, and 3 to 5:30 there are no GS classes, no CSET classes, so that the timings will not clash. And new batches are scheduled from 1st of June. So 1st June से start होने वाले हैं. Law will start from 10th June and all others will start from 1st June. Economics will start in July. Economics का एक ही बैच लेते हैं डॉक्टर विवास, and he will start in July. So he will, and all the optionals take 4 to 6 months depending on optional to optional. कुछ 6 महीने तक चलते हैं, कुछ 4 महीने में complete हो जाते हैं. So all the teachers of Next IAS, they are very good teachers. अगर किसी को भी इनसे interact करना है, आप उनसे मिल सकते हैं, उनके videos देख सकते हैं, उनसे discussion कर सकते हैं before you conclude. क्योंकि अगर आपको confusion है तो उनसे भी मिल सकते हैं. आज भी कुछ लोग available होंगे. Those of you who want to talk to them, you can interact with them. Right. So sociology, political science, economics, history, anthropology, mathematics, geography, and the law. These are the options available. So the question is कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको पहले नहीं पढ़ा, क्या उसको लेना चाहिए, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो ऑलरेडी पढ़ा है? दिस इज द क्वेश्चन, आपसे है. So what is your background? Like, if you don't mind me asking, graduation, mathematics. Okay, so you don't want to take mathematics, basically. So that's absolutely okay. There are a lot of people who don't take optionals which are their graduation subjects. That doesn't mean you will be left behind in any way. Okay, like I said, you'll have to start from ground zero. You'll have to maybe put a little bit more effort, but ऐसा नहीं है कि आप किसी और से पीछे रह जाएंगे. ठीक है, so आप बिल्कुल ले सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं ही बता रही हूँ अपना, मैंने 5 साल डेंटल पढ़ा है. ठीक है, मेरा सिर्फ 11th-12th में साइकोलॉजी था, बट 5 years में नोबडी रिमेंबर्स आपने 5 साल पहले क्या पढ़ा था, राइट? सो इट वाज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो. ओके, बट दैट डजंट मीन दैट you will be left behind. See, optional is also a lot of, like, it's a game of a mindset also. ठीक है, कि अगर आप ये सोच के चलेंगे कि नहीं यार मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं तो पीछे ही रह जाऊंगा, देन आप डेफिनेटली पीछे ही रह जाएंगे. ठीक है, बट यू हैव टू स्टार्ट विद द माइंडसेट कि इफ आई पुट माई एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, इट्स गोइंग टू कम टू फ्रूइशन. ठीक है, तो आप वही पैटर्न फॉलो करिए, सिलेबस देखिए, आप PYQs देखिए कि आप अगर नया सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, आप वो पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, और फिर आप पिवट कर सकते हैं उस डायरेक्शन में. बहुत सारे आपको ऐसे टॉपर्स मिलेंगे जो नहीं लेते हैं वो सब्जेक्ट जो उनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होता है. सो इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट, चेंज इट. जैसे सर ने कहा, इमोशनल डिसीजन नहीं, रैशनल डिसीजन. अच्छा, आउट ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू आर अपीयरिंग इन 2027? Okay, and how many in 2028? And anyone who is appearing in 2026 yet not decided optional? ऐसे कोई नहीं है. ठीक है, in 2029? Good. Because what is the right time to start the optional subject? This will depend on your year of attempt. Those who are planning for 2027, next year prelim, for them this is the right time. Start in June, finish till December. Those who intend to write in 2028, and if you are attending GS classes now, you can spread out. फिर आप ना 2 क्लासेस एक साथ करने की बजाय GS को अभी कर लो, क्योंकि आपको अटेम्प्ट तो 2028 में लिखना है, तो आप GS की क्लासेस के बाद ऑप्शनल को कर सकते हैं. यू हैव मोर टाइम. और एक बार जब GS फिनिश कर लोगे, you will be in better position to investigate yourself कि which subject fascinates you better. आपको ज्योग्राफी अच्छा लग रहा है, पॉलिटी अच्छा लग रहा है, इकोनॉमी अच्छा लग रहा है, GS के सब्जेक्ट्स में से फिर वहां से कुछ ना कुछ आपको और आइडिया डेवलप होगा कि मेरे लिए ऑप्शनल क्या अच्छा हो सकता है. बट ये उनके लिए ठीक है जो 28 में लिख रहे हैं. जो 27 में लिख रहे हैं उनके लिए 15 दिन टाइम है डिसाइड करने का. 15 दिन में आप डिसीजन ले लो, ताकि 1 जून से या 15 जून से या 25 जून तक आप स्टार्ट कर लो. इफ यू मिस आउट दिस साइकिल ऑफ प्रिपरेशन, तो फिर आपको अक्टूबर नवंबर वाले साइकिल में जाओगे, एंड दैट विल क्लैश विद द प्रीलिम्स प्रिपरेशन पीरियड. तो वहां पर डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, तो जो लोग 28 का लिख रहे हैं उनके लिए
इस साल या नेक्स्ट ईयर दोनों में से कोई भी ऑप्शन है, आप जीएस और ऑप्शनल को थोड़ा सेग्रीगेट करके एक वन आफ्टर द अदर कर लीजिए। एंड दोज हु आर इन 2029 उनके लिए मैं कहूंगा कि अभी आप ऑप्शनल मैथ स्टार्ट करो। टेक सफिशिएंट टाइम, आपको 29 में लिखना है। टेक सफिशिएंट टाइम, फिनिश योर जीएस इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड और योर एनसीईआरटी ऑलरेडी स्टार्टेड। आप इसी समय नेक्स्ट ईयर प्लान करना, नॉट नाउ। तो 29 के लिए लिखना है तो अभी इतनी, इट इज टू अर्ली टू स्टार्ट दी ऑप्शनल। व्हाट यू सजेस्ट? बिल्कुल, आई थिंक बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली दोज हु आर राइटिंग इन 2028 और 29। अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जीएस इज़ नॉट अ डेटरेंट फैक्टर फॉर यू एनी मोर। ठीक है, आपको सिर्फ अपने ऑप्शनल पे फोकस करना है एंड आपका जीएस एकदम रॉक सॉलिड हो जाना चाहिए। यू शुड हैव योर नोट्स सॉर्टेड। यू बस आपका वैल्यू एडिशन रह जाए, आपके नोट्स सारे रेडी हो जाए, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए सारे सब्जेक्ट्स को लेके, स्पेशली मेंस। ठीक है, सो 2028 29 वालों के पास बहुत अच्छा टाइम है टू यूटिलाइज इट सफिशिएंटली टू मेक देयर जीएस वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, बिकॉज ऑप्शनल मेक्स 500 आउट ऑफ द 1750, 1250 तो जीएस ही है। ठीक है, सो अपने एसे पे वर्क करिए। ठीक है, जिनकी इंग्लिश थोड़ा वीकर पॉइंट है, दिस इज द टाइम अपना इंग्लिश स्ट्रेंथन करिए, बिकॉज एसे आपको इन केस इंग्लिश आपका मीडियम रहेगा तो। सो एसेज अपने स्ट्रॉन्ग करिए, अपना एथिक्स स्ट्रॉन्ग करिए, बिकॉज दीज टू आर वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इफ यू आर डूइंग इट राइट। ठीक है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करिए अपने ये वाले एरियाज को स्ट्रेंथन करने के लिए, जो लोग मतलब जो बाकी लोग बाद में स्ट्रगल करेंगे वो आपको ना करनी पड़े। तो अपना जीएस, एथिक्स, ऐसे ये सारी चीज़ें स्ट्रेंथन कर लीजिए, ताकि आप बस वैल्यू एडिशन करंट अफेयर्स का कर पाए इन द ईयर विच यू आर गिविंग एन अटेम्प्ट, एंड यू कैन फोकस ऑन योर प्रीलिम्स एंड ऑप्शनल आफ्टरवर्ड्स। सो आई से थिंक आपने किसी और ने भी अपना हैंड रेज किया था, व्हाट इज योर क्वेश्चन? I will repeat your question because there are some students who are watching online also. His question is that he comes from medical background और मेडिकल बैकग्राउंड में इतने रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, आंसर इवेल्युएशन, कॉपी चेक करना, टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट स्ट्रगल यू विल फेस? सो सी साइकोलॉजी में भी थोड़ा सेम इशू रहता है। ठीक है, सो आई अंडरस्टैंड वेर यूर कमिंग फ्रॉम। सो वॉट यू कैन डू फॉर दिस इज लाइक इज कि आंसर्स लिखिए। इफ़ यू कैन फॉर्म अ पीयर ग्रुप दैट विल बी वेरी गुड। ठीक है, अब आपको पीयर ग्रुप ज़रूरी नहीं है आपको यहीं पे मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे हु विल हैव सेम ऑप्शनल एज यू। ओके, सो यू कैन शेयर योर आंसर कॉपीज। ओके, यू कैन डिस्कस योर डाउट्स एंड यू कैन फिगर आउट कि अच्छा आपने क्या चीज़ अच्छी लिखी है और उन्होंने क्या चीज़ अच्छी लिखी है। ठीक है, सो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, यू कैन फॉर्म अ स्टडी प्लान टुगेदर। सो बेस्ट वे टू गो अबाउट एन ऑप्शनल जिसके लिए थोड़ा सपोर्ट कम है इज टू फाइंड अ पीयर ग्रुप। ठीक है, इट विल रियली हेल्प यू। उसके बाद आंसर कॉपीज और टॉपर कॉपीज रिलेटिवली कम होंगी, बट कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा, चाहे इट बी फ्रॉम 3 years बैक, 4 years बैक, 5 years बैक। उन कॉपीज को भी आप एनालाइज करिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन साइकोलॉजी ऑल्सो वी ओनली हैव 2-3 टॉपर्स जिनकी कॉपीज अवेलेबल है। ठीक है, बट उनका एनालिसिस रियली हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि ओके हमें लिखना क्या है, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ आवर आंसर्स, क्योंकि ऑप्शनल भी वेरी करता है स्ट्रक्चर फ्रॉम ऑप्शनल टू ऑप्शनल, राइट? सो डू दैट। ठीक है, ट्राई टू फाइंड, लोगों से बात करके ट्राई टू फाइंड 2-3 टॉपर्स ऐसे जिनके आपको कॉपीज मिल जाए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस सी आपको फॉलो तो वही पैटर्न करना है, PYQs एंड सिलेबस। ठीक है, इफ़ यू डू दैट यू विल बी सॉर्टेड। एंड मेजरली हर ऑप्शनल का जो आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर होता है इट माइट बी डिफरेंट, बट एक बेसिक पैटर्न आपका इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी विल रिमेन द सेम। करेक्ट, सो you don't have to change. Are you appearing in 27 or 28? 28, right? So I will suggest इस month आप explore करिए अपना optional। ठीक है, try to incorporate these things, try to see if you can find people who can support you in your preparation. Okay, and उसके बाद if you still feel कि आपसे नहीं हो पाएगा, then you can change your optional later on because you have 2 years right now, and 2 years is a very good time to prepare for an optional like medical science. ओके, एंड इस साल तो काफ़ी सारे टॉपर्स हैं मेडिकल साइंस के। देयर आर 3-4 टॉपर्स फ्रॉम मेडिकल साइंस। फाइंड द टेलीग्राम चैनल्स ऑल्सो। ठीक है, मोस्टली टॉपर्स जो होते हैं वो चैनल्स बना लेते हैं अपने, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उनकी स्ट्रैटेजीज क्या रही हैं। उसके बाद अगर आपको 1-2 महीने बाद भी लगता है कि ओके दिस इज नॉट एन ऑप्शनल, यू विल बी एबल टू कोप अप विद, देन मे बी यू कैन प्लान ऑन चेंजिंग इट। बट डोंट जस्ट स्विच इट बिकॉज आपको लग रहा है कि अभी एज ऑफ नाउ, बिकॉज सी नोबडी स्टार्ट्स राइटिंग परफेक्ट आंसर्स। ठीक है, इनिशियली मैंने फर्स्ट जब अपना फुल लेंथ पेपर दिया था आई स्कोर्ड 86।
मार्क्स, ठीक है. सो दैट वाज अ ह्यूज सेटबैक फॉर मी. मुझे भी लगा था कि भाई will I be able to do this or not? But you improve gradually. It's a slow process. UPSC is a slow process. It takes time. Okay, so explore it for some time and then you can decide, because you're preparing 2 years later. Mm, I'm just adding here one more point. Those who want to see the toppers copies, out of 7 major top optionals, I think for all optionals we have uploaded the answer sheets in Next IAS website. If you go in free resources, and within the free resources the previous year toppers copies are uploaded. टेस्ट सीरीज जिसने भी यहाँ लिखी होंगी उनकी कॉपीज अपलोडेड है, इंक्लूडिंग दी जनरल स्टडीज, एसे पेपर एंड दी ऑप्शनल पेपर्स, तो यू कैन गो थ्रू. दूसरा इन्होंने सजेस्ट कर ही दिया. वन क्वेश्चन आई हैव रिसीव्ड इट फ्रॉम जयपुर सेंटर और प्रयागराज कि आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट गिविंग माय अटेम्प्ट इन 2027 और इन 2028. नाउ दिस कंफ्यूजन इज वेरी ऑब्वियस, बट दिस इज द राइट टाइम you can take a call, क्योंकि अभी आपके पास sufficient time है. Even if you target 2027, there is one complete year left to appear in 2027. So those who are already passed out and now in full-fledged preparation journey, you have already started your study. I think 2027 should be the target. आप 2027 के हिसाब से टारगेट बना के चलो. प्रिपरेशन का पेस डिफरेंट होगा और एफर्ट्स ज्यादा होंगे. बट अगर आपकी प्रिपरेशन हो सकती है 27 में, फिर भी आप 28 टारगेट करोगे तो आपका फर्स्ट ईयर बहुत स्लो बीतेगा. ये डिसीजन कंफ्यूजन वाला, जब आपको कॉल लेना पड़े, ये स्टेज होनी चाहिए अगले साल इस समय कि अब मैं अटेम्प्ट लिखूं या छोड़ दूं. अभी से कंफ्यूज नहीं होना 27 या 28 में से. इट शुड बी अ वेरी क्लियर डिसीजन कि 27 करना है या 28. टारगेट 27, बट हाँ अगर अभी आपने जर्नी स्टार्ट की है, अभी कॉलेज में है या अभी पार्ट टाइम कर रहे हो या अभी उतना नहीं है चांस, तो ठीक है 28 करो. बट दोज हु कैन मेक इट, लेट्स ट्राई टू कैच अप दिस ट्रेन ऑफ 2027. इंटरेस्टिंग है या कौन सा नहीं है. ग्रेजुएशन में मार्क्स कम थे तो कंफ्यूज्ड है कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए. कोई बात नहीं, मार्क्स कम थे या ज्यादा, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन यूपीएससी एग्जाम. तो फॉरगेट अबाउट योर ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस. नाउ इंपॉर्टेंट यह है कि आप जो ऑप्शनल के बारे में सोच रहे हैं, पहले 2 या 3 तक पहुंचो. वी कैन हेल्प यू आउट व्हेन यू हैव द 2 और 3 ऑप्शंस कि इसमें ये लूं ये लूं ये लूं. बट व्हेन इट कम्स कि पूरे 52 में से कौन सा लेना है, क्योंकि हम लिटरेचर को भी इंक्लूड कर देंगे तो 50 प्लस हो जाते हैं, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हेल्प यू आउट. तो सबसे पहले तो आप कंक्लूड करो कि मुझे 2 या 3 में से कौन सा लेना है. फिर जो अप्रोच यशवी ने बताई है कि आप एक एक चैप्टर पढ़ के देखो, वो कर लो. अदरवाइज एक ऑप्शन और हो सकता है कि जब 2 या 3 तक पहुंच जाओ ना, तो फिर आप 3-3 लेक्चर, 4-4 लेक्चर किसी यूट्यूब से या किसी टीचर के लेकर के आप देख लो. उसमें से जो सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, वहां कंक्लूड कर लो. बट कॉलेज की बैकग्राउंड को भूल जाओ, उससे अब जो है वो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. Which year are you planning on giving? 27, right? Okay, so first is, if you have your basic material sorted, you know your books which you have to study and everything. Yeah. Okay, so see, there are standard books for psychology also. ठीक है, there's Cicerelli or Barron for paper 1, Mark Swain for paper 2, right? So when it comes to answer writing part, psychology is a very applicative optional. Okay, it's not just आपने कोई चीज़ पढ़ी और आपने वो चीज़ लिख दी. ठीक है, पेपर 1 इज अ लिटिल बिट लाइक दैट, जो उसकी थ्योरीज हैं, बट अदरवाइज साइकोलॉजी इज वेरी एप्लीकेटिव, राइट? सो साइकोलॉजी में फॉर आंसर राइटिंग, इंटीग्रेट योर जीएस सब्जेक्ट्स इन साइकोलॉजी. इट विल रियली एनहांस योर आंसर्स. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप पेपर 2 के आंसर्स लिख रहे हैं, उसके अंदर यू कैन राइट एग्जाम्पल्स फ्रॉम एथिक्स, GS1, GS2, GS3. Okay, so integrate your GS subjects in your optional. First thing is that in answer writing. Second is structuring, introduction, body, conclusion. ठीक है, if it's a 10 marker, break it into 2 parts. 15 marker, break it into 3 parts. 20 marker, break it into 4 to 5 parts, right? Now when it comes to value addition in psychology, one, it comes from GS.
right? Second, it comes from research studies and case studies. I don't know how much it's applicable for other options, but if it is, then please take note. It comes from researchers and our case studies and experiments. It comes from examples which you can pick up from ethics, GS1 to GS4, and it also comes from your day to day, your personal life. Okay, so जितना पर्सनलाइज करोगे ना ऑप्शनल को, बेटर यू विल स्कोर rather than रटे रटाया लिखने का. ठीक है. Now try to and data also. You can also write data in psychology. Now these four things add value to your answers when it comes to psychology as an optional. Now how to evaluate it? पहले आप देखिए कि ये सारी चीज़ें आपके आंसर्स में ये क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. ठीक है. Second, try to form a peer group. It will really enhance your answer writing skills, because that's what I did. I had like 2 more friends with me who were preparing from psychology optional. हम एक दूसरे को we used to give constructive criticism कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है. And I think this goes for all the optionals. ठीक है, except for maths and the technical ones जिनके अंदर सिर्फ yes, right or wrong answers हैं. A peer group will really help you understand, and it will help you understand, gain different perspectives to the same question. ओके, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या चीज़ और इनकॉर्पोरेट कर सकते थे अपने आंसर्स के अंदर, राइट. अनदर थिंग इज टॉपर कॉपीज. साइकोलॉजी के कुछ कुछ टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल हैं. यू राइट द सेम आंसर. आप क्वेश्चन देखिए, आंसर खुद लिखिए, एंड देन कंपेयर करिए कि टॉपर ने क्या लिखा है और आपने क्या लिखा है. ठीक है. एंड देन यू कैन वैल्यू एड इन योर आंसर फ्रॉम देयर कि क्या वैल्यू एडिशंस और हो सकते थे. ठीक है. एंड लास्ट थिंग, योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स शुड नॉट बी बेसिक. Value add in introductions and conclusions, quotes, datas, committees, your different data points, ये सब आपके introduction conclusions में होने चाहिए, whether it be a GS answer or whether it be an optional. ठीक है. Especially psychology में all this can be done very well. So you can start there. Okay, and you will again gradually you will improve. Psychology में unlike GS you can write a little longer points. You don't have to write एक liner and one example. You can write 3 to 4 lines एक पॉइंट के लिए. ठीक है. यू कैन एक्सप्लेन अ लिटिल फॉर साइकोलॉजी. सी मेजरली ऑप्शनल्स जो है ना, उनका पेपर 1 जो होता है वो स्टैटिक होता है, एंड पेपर 2 जो होता है वो एप्लीकेटिव होता है. ठीक है. सो ईदर यू टेक टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, इंजीनियरिंग एंड ऑल ऑफ दोज, तो आप थोड़ा बच सकते हैं उस पार्ट से कि आपको सिर्फ स्टैटिक चीज़ें पढ़नी पड़े. बट इफ़ यू आर टेकिंग ऑप्शनल्स ऑन अ ह्यूमैनिटीज साइड, देन यू विल हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स यू आर लर्निंग इन पेपर 1 एंड पेपर 2. ठीक है. क्योंकि पेपर 1 विल बी योर स्टैटिक बेस्ड थियोरेटिकल, बट पेपर 2 विल बी एप्लीकेटिव विच यू विल हैव टू लिंक फ्रॉम योर करंट अफेयर्स. जैसे साइकोलॉजी का पेपर 2 का सब्जेक्ट स्टैटिक है, बट यू हैव टू लिंक इट टू द करंट थिंग्स विच आर गोइंग ऑन. So that goes for majorly most of the optionals which are not technical. Those who are from science background, जिनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, वैसे मैथ्स इज ऑल्सो इक्वली गुड ऑप्शनल. स्कोर भी अच्छा आ रहा है और मैथमेटिक्स हैज बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग वेल. या सो हिज क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द स्केलिंग मैकेनिज्म. आपका स्केलिंग फैक्टर तो बहुत डिफिकल्ट है. स्केलिंग मैकेनिज्म, यूपीएससी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन कमीशन. स्केलिंग का जो प्रोसीजर है एक्चुअली आज तक समझ नहीं आया किसी को कि एक्चुअली स्केलिंग होती कैसे, कोई फिक्स फॉर्मूला क्या है. आई हैव बीन इन डिस्कशन विद द इवन द फॉर्मर यूपीएससी मेंबर्स. दे आर आल्सो नॉट क्लियर एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि इफ सम सब्जेक्ट हैज वेरी डिफिकल्ट एंड लेंथी पेपर and the performance of most of these students has gone down, then their marks are scaled up. The other optional subject which has very easier paper and everyone is scoring high marks, their marks are scaled down. But इसकी जो स्केलिंग का कोई फॉर्मूला अगर होगा तो that is not known to us and that is not known to public. This I am very clear. तो इसमें स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन होती है पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पर, परफॉर्मेंस बेसिस पर. सो व्हाट दे मस्ट बी डूइंग, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दे मे बी डूइंग कि एवरेज मार्क्स ऑफ वन ऑप्शनल एंड एवरेज मार्क्स ऑफ द अदर ऑप्शनल, वो उनको कहीं ना कहीं आसपास होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी ए ह्यूज डिफरेंस कि एक ऑप्शनल का एवरेज मार्क्स है 280 और एक एवरेज मार्क्स है 220. दैट डिफरेंस कैन नॉट हैपन. Now coming to the one individual student scoring exceptionally high, that is happening, that is quite possible.
330, 340, 356 मार्क्स आए हैं. I remember one student of civil engineering, his rank was 31. He was from IIT Delhi. I think his name was Meena. He scored 356 in civil engineering. But उसके बाद जब दूसरा देखते हैं कि दूसरे नंबर के मार्क्स क्या हैं, तो it was less than 300. तो वो तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है. यू हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन एग्जाम, आपने सारे क्वेश्चन सही करके आए, मार्क्स काटेंगे कहाँ? बट अगर वो उसमें सभी लोग ज्यादा लेके आ रहे हैं तो उनको कम करने पड़ेंगे. So this average performance is what is scaled, not the individual performance is scaled. So his question is mathematics का syllabus and humanities subject का syllabus. आपको एक चीज हमेशा कंसीडर करनी है, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट इन स्टडी. जैसे मैथमेटिक्स क्या क्या नेचर है, मतलब आपने कॉन्सेप्ट समझा, प्रैक्टिस करनी है, और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो कॉन्सेप्ट आपको लंबे समय तक याद रह जाएगा. बट दैट मे नॉट बी द स्टोरी ऑफ द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट. ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. सो यू कैन नॉट कंपेयर डायरेक्टली कि सिलेबस में इसका कम है, इसका ज्यादा है. मैथमेटिक्स में हो सकता है कि प्रैक्टिस की वजह से नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ज्यादा है, इसलिए वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है, और यहां एग्जाम्पल है नहीं, यहां तो सिर्फ थ्योरी है. सो हियर इट इज ए कंप्रेस्ड नोट्स because there are only theory sections. Here there are the bulky notes because there are a lot of the examples that is actually happening. तो हमें सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमें देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या बेटर है. अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग स्किल्स अच्छी हैं, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, फिर तो आप उसके की नोट्स बना लो. अपने मैथमेटिक्स के या फिजिक्स के किसी भी सब्जेक्ट के आपने फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट की नोट्स बना लिए और उनको रिवाइज किया. आई स्टिल रिमेंबर द रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव. ही वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, 2023 टॉपर, 2023 टॉपर. ही वाज बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर. उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और इलेक्ट्रिकल से रैंक 1 लेकर के आए. और उन्होंने क्या किया था, जॉब के साथ में थे, वो पहले आईपीएस थे, फिर आईएएस बने. उन्होंने अपने नोट्स कंप्रेस करके और सिर्फ 300 पेज में, 400 पेज में कर लिए थे. एंड द रेस्ट वाज हिज प्रैक्टिस. अब प्रैक्टिस का तो कोई वॉल्यूम नहीं होता, आप जितना चाहो उतना कर लो. क्वेश्चन सॉल्व करना, एग्जाम्पल सॉल्व करना. तो इवन द मैथमेटिक्स टाइप ऑफ द सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग टाइप ऑफ द सब्जेक्ट कैन बी कंप्रेस्ड फॉर द फ्यूचर रिविजन्स, बट वन टाइम योर एफर्ट्स विल बी नीडेड, क्योंकि सिलेबस तो करना पड़ेगा आपको. सो वन टाइम एफर्ट्स आर नीडेड, देन यू कैन ब्रिंग डाउन देम, कंप्रेस देम in the revision format and let us have a practice. कितने लोगों को तो आनंद आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, प्रैक्टिस करने में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन करने में. तो उनके लिए तो ये इट इज लाइक ए फन, इट इज लाइक ए सॉल्विंग रूबिक्स क्यूब. तो उनके लिए वो अच्छा है. सो डोंट गो सिंपली इन द वॉल्यूम. मैथमेटिक्स इज इक्वली गुड सब्जेक्ट और बहुत लोग मैथमेटिक्स लेते हैं. और I gave you the example. I think it is the fifth highest number of candidates appearing in mathematics. पहले PSIR है, फिर सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ज्योग्राफी है, फिर मैथमेटिक्स है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है. तो गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग एंड सिलेक्शन में मार्क्स भी अच्छे ठीक ही आते हैं, अच्छे आते हैं. Okay, so if anybody wants to do self-study of their optional, the first thing is you need to know the syllabus of the optional. जैसे मैंने बोला, you should be very thorough with what your optional is. Right. So अपना syllabus, you go through your syllabus well. Second is reading the standard books first, because हर optional की आपको एक basic understanding तो develop करनी ही पड़ेगी. ठीक है. So I read the basic books. मैंने जैसे 11th-12th की NCERTs दोबारा पढ़ी, जो मेरी standard books हैं for both paper 1, paper 2, मैंने वो पढ़ी. ठीक है. And I did not immediately go into note making. First मैंने पहले पूरी books फर्स्ट रीडिंग में आई रेड द होल बुक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, नॉट कि पेज टू पेज, बट जो भी सिलेबस पॉइंटर्स हैं वो वाली चीज़ें मैंने हर बुक से पढ़ी. उसके बाद इन माई सेकेंड रीडिंग व्हेन आई अंडरस्टूड व्हाट द सिलेबस इज, आई अंडरस्टूड व्हाट द बेसिक मटेरियल इज, देन आई स्टार्टेड मेकिंग माई नोट्स. ठीक है. अब नोट्स कैसे बनाए मैंने? नोट्स बनाए मैंने सिलेबस पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग ही. जो सिलेबस में मेरा पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग मेरे 2 या 3 पेज के उस चीज़ के नोट्स होते थे. ठीक है. विच आई वुड मेक फ्रॉम माई स्टैंडर्ड मटीरियल इटसेल्फ प्लस द टॉपर नोट्स मैं थोड़ा उसमें ऐड कर लेती थी. सो दैट वुड बी माई स्टैंडर्ड नोट्स जो मेरे बन जाते थे. नाउ योर स्टैंडर्ड नोट्स विल बी अ लिटिल बल्की, क्योंकि आप इनिशियली जब सेकेंड रीडिंग में बना रहे हैं तो आपको मेजरली चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं.
ठीक है। नाउ जैसे ही मेरा एक टॉपिक खत्म होता था, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग वॉज वन ऑफ द टॉपिक्स, तो अगर मेरा लर्निंग चैप्टर खत्म हो गया है, सो आई वुड गो टू इट्स PYQs। मैं देखती थी कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं उससे PYQs किस लेवल तक सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। इफ आई एम एबल टू सॉल्व अबाउट 80% ऑफ द PYQs इन माई नोट्स, आई वुड बी सेटिस्फाइड, बिकॉज 10 to 20% जो क्वेश्चन आते हैं वो आप बाउंसर जिसे कहते हैं, जो कभी रिपीट नहीं होंगे, जो मे बी 100 लोग अगर पेपर दे रहे हैं उनमें से किसी एक को आते होंगे, वैसे वाले होते हैं। ठीक है। सो दोज आर नॉट द थिंग्स यू हैव टू एड इन योर नोट्स. Those are things which get asked once in a blue moon and then they don't get asked again, right? So आपको फोकस करना है उन PYQs पे जो रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अगर उसमें से कोई ऐसी चीज है PYQs में जो आपके नोट्स में नहीं है, then I would add it to my notes. This is your value adding to your notes. ठीक है। So this is how I would go about my PYQs integrating into my notes. Now one chapter is done, would move on to the next. And सिर्फ मैं PYQs देखती नहीं थी, I would try and write 3 to 4 PYQs as well. ठीक है। उसके बाद जो peer discussion, peer review मैंने बताया, I would do that. Then I would move on to my next टॉपिक। ठीक है। ऐसे करके मेरी सेकेंड रीडिंग खत्म हो गई। मैंने पेपर 1 पेपर 2 के ऐसे करके पूरे नोट्स प्लस PYQs एक बारी देख के कंसोलिडेट कर लिए। नाउ एट दिस स्टेज आपका यूजुअली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो इस टाइम तक मेरा नवंबर दिसंबर का टाइम आ गया था, एंड आई वाज डन विद माय 2 रीडिंग्स ऑफ माय सिलेबस। आई हैड सीन द PYQs, आई हैड सीन द सिलेबस, आई वाज प्रिटी वेल प्रिपेयर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इसके बाद मैंने एक बार बस रीड थ्रू और कर लिया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर अपने पूरे नोट्स को। नाउ व्हेन योर ब्रेक कम्स फ्रॉम प्रीलिम्स, तो आप काफ़ी कुछ भूल जाते हो जो आपने ऑप्शनल पढ़ा होता है। देन यू स्टार्ट योर थर्ड और फोर्थ रीडिंग आफ्टर योर प्रीलिम्स। ओके। एंड इसमें आपको साथ साथ आंसर राइटिंग करती रहनी है। नाउ ऑप्शनल के साथ आंसर राइटिंग करना इज़ वेरी क्रूशियल। डोंट वेट कि मेरा पूरा सिलेबस खत्म होगा हम तब स्टार्ट करेंगे। डू अ टॉपिक आंसर राइटिंग, डू अ टॉपिक आंसर राइटिंग। ठीक है। अब जब आपका एक बार आपने PYQs कर लिए हैं, सो व्हेन यू आर मूविंग ऑन आफ्टर, मतलब जो आप प्रीलिम्स की बात की स्टेज में यू आर मूविंग ऑन टू, वहाँ पे यू कैन ऑप्ट फॉर अ टेस्ट सीरीज। ठीक है। क्योंकि आपने PYQs अच्छे से कवर कर लिए, यू वांट टू एक्सप्लोर मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, सो यू जॉइन अ टेस्ट सीरीज। अब इस टाइम आपकी 4th या 5th रिविजन आपके ऑप्शनल की स्टार्ट हो गई है। अब यू आर सो थरो विद योर ऑप्शनल कि यू कैन स्विच टू मेकिंग योर शॉर्ट नोट्स। ओके। शॉर्ट नोट्स में क्या है, आपका हाफ पेज में एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, विच जस्ट इंक्लूड्स योर कीवर्ड्स, डेटा पॉइंट्स, वैल्यू एडेड पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें। प्लस जो भी आप GS का पढ़ेंगे वो वाली चीज़ें, और जो आप करंट का पढ़ेंगे वो जो भी आपके ऑप्शनल से जिस भी लेवल तक रिलेट होता है वो आप ऐड कर लेंगे आफ्टर प्रीलिम्स, या जिस भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं आप, आफ्टर योर सेकेंड रीडिंग। आप उसके बाद जो भी करंट का पढ़ते हैं जो आपके ऑप्शनल से रिलेटेड है, आप अपने बेसिक नोट्स में ऐड करते जाएंगे। ठीक है। वन थिंग दैट आई विल सजेस्ट इज डू नॉट स्विच सोर्सेज। ठीक है। एक ऑप्शनल की 2 या 3 स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती हैं, बट दैट डज नॉट मीन यू हैव टू रीड ऑल ऑफ देम। नो सोर्स इज परफेक्ट, you have to make your own source perfect, and you do that by adding value, by adding current affairs to it, by जो भी आप टेस्ट सीरीज लिखते हैं उस और PYQs लिखते हैं उससे आप चीज़ें ऐड करेंगे। दिस इज हाउ यू build up your notes over 3 to 4 readings. So I hope that helps. I received the 2 questions online students are attending. One is Aditi Singh saying that I will finish my BTech in computer science by June 2027. I will give my attempt in 2028. It will be okay if I start optional sociology in June, or should I start next year? तो जिनका अभी BTech या BCom जो भी आपका ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो और अभी आपने स्टडी पैरेलल स्टार्ट की है एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर जनरल स्टडी पार्ट, आई विल सजेस्ट कि फिर आप पहले GS कर लो और अपना ग्रेजुएशन फिनिश कर लो, एंड वंस यू आर कंप्लीटेड विद दिस पार्ट देन यू कैन स्टार्ट दी ऑप्शनल, क्योंकि आपको 28 का लिखना है। लेकिन दोज हु आर डेडिकेटेडली प्रिपेयरिंग एंड दे इंटेंड टू राइट इन 2028, बट आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हो, आप पूरी तरह से प्रिपरेशन फेज में आ गए हो, तो यहां पर मेरा थोड़ा टेक अलग है। You should not spread the preparation for 2 years just कि you want to move slow and complete your destination in 2 years. It should be staged in 2 phases कि एक फाउंडेशन फेज और एक एडवांस फेज। ठीक है। आप 2028 का टारगेट लेके चल रहे हो, लो
फिर आपकी फर्स्ट ईयर की फेज होनी चाहिए फाउंडेशन और सेकंड ईयर की फेज होनी चाहिए एडवांस। लेकिन जो लोग अभी ऑलरेडी कॉलेज में हैं, कॉलेज के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है, आपको वहां भी टाइम देना है, तो आप फिर अपनी प्रिपरेशन को स्प्रेड आउट कर सकते हो कि फाउंडेशन को ही थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन में ले जाओ। तो दोनों में अलग अलग अप्रोच होगी। हिंदी मीडियम में रिजल्ट क्यों कम आ रहा है? ज्यादातर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आई विल more blame to the institutes who cover the syllabus of Hindi medium in 2 years. अब जब 2 साल तक आप फाउंडेशन का ही कोर्स नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो 2 साल में तो एनर्जी लेवल आधी बचती है। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आई शुड कंप्लीट इन 1 ईयर माई प्रिपरेशन एंड नेक्स्ट स्टेज शुड बी माई एडवांस स्टेज, वैल्यू एडिशन स्टेज, क्योंकि दिस इज द एग्जाम विच रिक्वायर्स कंसिस्टेंटली वैल्यू एडिशन। तो आई होप कि अदिति को मेरा आंसर मिल गया होगा। दूसरा है, दिस इज द लकी शर्मा, आई एम थिंकिंग टू टेक द मैथ एज ऑप्शनल, आई हैव डन 2 process, I had saw its syllabus, I had seen its syllabus PYQ, but I don't find any YouTube videos. I find it little friendly to me, but I am not able to confirm कि should I go for it. This is for all of you कि अगर आप confused हैं, किसी ऑप्शनल के लेक्चर देखना है तो नेक्स्ट IAS को या तो मेल में लिख सकते हैं, अदरवाइज टैगोर हाउस में इला शिवान, आप उनसे जा करके बोल सकते हैं कि मुझे 4 लेक्चर अटेंड करना है, सर की क्लास में बैठना है। आप कोई भी जो भी ऑप्शंस चल रहे हैं आप बैठ सकते हैं। उनके वीडियो देखना चाहते हैं जो लोग बाहर हैं तो आप मेल पे लिख सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड यू द एक्सेस टू सी इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ द वीडियो वाली जो बात कही है। वेयर यू हैव द मोर स्कोरिंग पैटर्न, out of 500 you score here 275, let us say, and in percentage it comes to 55%, but in GS you out of 1000 you score 400, so it comes 40%. So in one place you are scoring 42%, other place you are scoring 55%. So higher score means कि this is the area where you have to be एफर्टफुल, क्योंकि यहाँ पर आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। सो सी फॉर GS 1 to 3 जो आपका होता है वहाँ पे अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो मोटा मोटा अराउंड सेम एवरेज मार्क्स के अराउंड ही 1, 2 और 3 के मार्क्स रोटेट करते हैं, प्लस माइनस 10-15 आप ले सकते हैं। नाउ GS में भी द गेम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू essay एंड योर एथिक्स। ओके, सो तभी मैंने बोला था कि जो लोग 28-29 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं वो एथिक्स और ऐसे पे एक्स्ट्रा फोकस देके एक्स्ट्रा वर्क करें, बिकॉज दोज आर एरियाज जहाँ पे लोग ज़्यादा स्कोर करते हैं। ठीक है, 120 प्लस आपके इजीली मार्क्स जा सकते हैं। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू GS 1, 2 and 3 यू विल सी द एवरेज रोटेट्स अराउंड द सेम। ठीक है, GS 3 में आपका 80 to 100 के बीच में ही मार्क्स रहते हैं, GS 1 में आपके 90 to 100 के बीच में ही मार्क्स रहते हैं और 110 के बीच में। GS 2 में भी यू फॉलो अराउंड द सेम पैटर्न, 100 to 110, राइट। सो आप उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट जितना भी डालेंगे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपका वो रिलेटिवली कम रहेगा एज कम्पेयर टू जो आप इन्वेस्टमेंट डालेंगे इन योर ऑप्शनल, योर essay एंड योर एथिक्स। ठीक है, तो ये 3 एरियाज आपके ज्यादा स्कोरिंग होते हैं एज कम्पेयर टू 1, 2 and 3। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। देयर मे बी क्वेश्चन इन योर माइंड कि if you are an engineer or you are a medical background student and you are opting sociology or psychology, will there be question in the interview कि why you have not opted for this and why you have opted for the other? But with the past pattern, there are no such cross questions. They are not investigating you कि you are an engineer, you have not opted civil engineering, why you have gone for mathematics. First of all, not. But yes, there may be questions from engineering background in interview. For that, you will be required to prepare the basics of engineering for interview purpose. But that preparation is very different. That is not something what you require in the mains. That preparation can be done by 15 days, 20 days study, basics of the engineering applications, and then the recent news articles which are related to your field, that can be done. So do not bother about कि background can be questioned कि why you have not opted this optional. This will not be a question mark. We have not come across such questions in the past pattern. ऐसा UPSC will never discourage. They are giving you choice. How they can question कि why you don't keep your optional? If they have given a choice, you are free to choose. Similarly,
There will be students who are appearing in first attempt, some are appearing in second, some are appearing in sixth attempt. They will not ask you what you have been doing since last 7 years and why you have not joined any private sector, why you have come after 6 attempts. They will not, because they are giving the choice. They are giving those number of attempts. So they are not going to question you कि आपने 5 साल जॉब क्यों नहीं करा, आपने अपने 5 साल प्रेशियस टाइम क्यों बर्बाद किए. They will not ask. So UPSC is always evaluating candidates from positive mind frame, not from the negative mind frame. They want to select the bright candidates and they want to know your strength area. They will question on your strength area. They will not target on the weak area. So don't worry about that. वो ऐसी कोई भी questions नहीं raise करेंगे which is not logical. They are very practical. They will keep you in comfort, so don't worry about the interview stage. While selecting the optional, interview should not be in consideration. Your score in the main should be in consideration. सी ये जो टाइम गैप है ना ये आपके हर ऑप्शनल में आएगा, ठीक है. इवन इफ यू टेक एंथ्रो, यू टेक जोग्राफी, इफ यू हैड जियोलॉजी, इफ देयर इज जियोलॉजी ऑप्शनल आल्सो, यू शुड कंसिडर दैट आल्सो. और मैथ्स, वो टाइम गैप जो आपका 6 मंथ्स का आएगा फॉर प्रीलिम्स, इट्स गोइंग टू कम फॉर एनी ऑप्शनल इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू चूज, ठीक है. सो वो आप वो डोंट फोकस ऑन दैट कि वो टाइम गैप आएगा तो मैं कैसे करूँगी मैनेज, ठीक है. Second is about consolidation. Now, if you're giving in 2027, right? So, excuse me. So, if you are planning on giving in 27, if you have consolidated whatever optional you're choosing by December, अगर आपने 2 बार ही उसको अच्छे से कर लिया है ना, so आपको relatively after prelims कम time लगेगा उसको दोबारा उठाने में. Initial 1 week will be difficult, but second week से you'll gain your pace again. ठीक है, I'm speaking this from personal experience, of course. ठीक है, so don't choose your optional thinking कि how I will cover it after prelims. प्रीलिम्स के बाद सारे ऑप्शनल्स कवर हो जाते हैं, ट्रस्ट मी ऑन इट. इट डिपेंड्स हाउ वेल यू कंसोलिडेटेड बिफोर योर प्रीलिम्स स्टार्ट. I have received a question from Ritika Jain. Sir, can you suggest the basic books for political science and sociology? So, I think the concerned teachers are the best people to suggest the books. So, those who want the suggestion from the concerned teachers, if you can write a mail, we can revert back with the concerned resources. Concerned teachers will revert back or they will call back. हम कनेक्ट कर देंगे उनके साथ. और दूसरा है कि माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द लिटरेचर ऑप्शनल, दैट इफ द मीडियम ऑफ जीएस एंड ऑप्शनल, देन आई हैव टू मैनेज द अनदर मीडियम ऑफ द लिटरेचर, शुड आई गो फॉर लिटरेचर. तो देखिए, लिटरेचर अगर आप ले रहे हैं, यू मस्ट बी मास्टर इन दैट, वेदर इट इज हिंदी लिटरेचर और एनी अदर लिटरेचर. तो लिटरेचर वही लोग लेना चाहिए, दोज हु आर रियली मास्टर इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, क्योंकि दिस इज एक्चुअली ए लैंग्वेज टेस्ट. तो यहाँ पर लिटरेचर में तो यू हैव टू बी वेरी गुड इन योर लिटरेचर सब्जेक्ट. सी हर ऑप्शनल में यू विल हैव टू डेडिकेट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम. नाउ जो रेशियो यूजुअली मेरा रहता था was 60 to 40, 60 being my optional, 40 being my GS, because a lot of GS you will cover during your prelims also. ठीक है. नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन जीएस इज कि आप आपके बेसिक नोट्स रेडी हो हर सब्जेक्ट के, विच यू कैन रिवाइज. ठीक है, अब आपको याद तो मैथमेटिक्स में भी करनी है चीज़ें, याद आपको एंथ्रो में भी करनी पड़ेंगी, याद आपको ज्योग्राफी में भी करनी पड़ेंगी. देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम एनी ऑफ इट. ठीक है, बट इफ मैथ्स इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है, देन इट इज सिली इफ यू डोंट continue with it just because other people are telling you you can't do it. ठीक है, if you have confidence on yourself कि आप कर सकते हो, you're good in it, then why are you listening to what other people are telling you to do? Go for what your heart tells you is the right decision for you. Don't listen to what other people are telling you, because you will talk to 10 people, 10 people will suggest you 10 different optionals also. ठीक है, but you have to decide what is good for you and what is not good for you. I will add something to your question. Her question is that कि people are discouraging me to go for mathematics, कि mathematics में time ज़्यादा लगता है और बहुत पढ़ना पड़ता है, revise करना पड़ता है. Every subject has its own advantages and disadvantages. For me, if I am in your place, if I have the interest in mathematics and I have conceptual clarity about the mathematics, it may take more time, first time to prepare. But the subject is not only to be read once. I have to revise it, I have to practice it, I have to reperform in the next year also.
और आपके सब्जेक्ट में एक बार मुझे समझ आ गया मैथमेटिक्स, आई कैन ब्रिंग डाउन दैट सब्जेक्ट इनटू ए कंसोलिडेटेड फॉर्मूला पार्ट, and once my concepts are clear, the rest part is my practice. I can reduce my time in the revisions. I may require more time in first time, but I can reduce that time in the second and third revision. That may not be the story of the other optional. बाकी जगह हो सकता है कि आपको ज्यादा सेकंड टाइम में टाइम देना पड़े, फर्स्ट टाइम में कम देना पड़े. यहाँ पर फर्स्ट टाइम में ज्यादा देना पड़ेगा, सेकंड टाइम में हो सकता है कम देना पड़े. सो इट ऑल डिपेंड्स. क्योंकि मैथमेटिक्स में तो हम सभी ने पढ़ा है, बेसिक तो पढ़ा ही है, आप भी पढ़ते हैं, और इसका सी सेट का पार्ट है. इट इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. एक बार आपको समझ में आ गया, फिर तो फॉर्मूले बहुत छोटी से कंप्रेस्ड फॉर्मेट में आ जाते हैं, फिर तो उनको रिवाइज करके फिर आपको सॉल्व करना है. वो प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज द इम्पॉर्टेंट. तो आप दूसरों को, इन्होंने सही सजेस्ट किया कि यू लिसन टू योर सेल्फ. ले रहे हैं ना लोग, सेलेक्ट हो रहे हैं ना, तो हर ऑप्शनल में तो जा रहे हैं ना, इसका मतलब कि ऑप्शनल कोई भी खराब नहीं है. यू कैन चूज एनी ऑप्शनल. सो डू नॉट बी influenced by the people. अब he or she is a different person, and how her or his decision can affect your preparation. It is your decision which will affect. उनका एप्टीट्यूड हो सकता है अच्छा नहीं हो मैथ्स में. मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगी किसी को मैथ्स ऑप्शन. एक मैं एग्जांपल बताता हूँ. दैट एग्जांपल इज अ वेरी ओपनिंग इनसाइट्स. There was one student of mechanical engineering background, and he had the sociology as an optional. It's a 4-5 years story, back story. 3 अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ. प्रीलिम्स हुआ क्लियर, मेंस में नहीं हुआ, ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म. अल्टीमेटली उसने सोचा कि आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, लेट मी फोकस ऑन द इंजीनियरिंग. तो उसने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन छोड़ दी. ही ज्वाइंड मेड with mechanical engineering. He appeared in engineering service and he got selected. अब जब उसका सिलेक्शन हो गया तो उसने सोचा कि आप सिविल सर्विस दे लेता हूँ, मैकेनिकल से दे लेता हूँ, एंड ही गॉट IAS इन द सेम अटेम्प्ट विद मैकेनिकल. 90% लोगों के लिए मैकेनिकल अनलकी है, उनके लिए लकी था. तो ये हर इंडिविजुअल का एक अपना इंटरेस्ट एरिया है, अपना एक इंटरेस्ट फील्ड है. यू कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एवरीबडी. देयर में भी रिवर्स स्टोरीज ऑल्सो, कि वो मैकेनिकल में सिविल में अच्छा नहीं कर पा रहे, ह्यूमैनिटी में अच्छा कर गए. सो यू आर वन इंडिविजुअल, यू टेक ए कॉल फॉर यू, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर्स. थोड़ा सा एफर्ट करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, 2-3 हफ्ते लगाओ, 4 हफ्ते लगाओ, फिर डिसीजन लो. एंड दिस डिसीजन शुड बी वेरी थॉटफुली टेकन. It should not be a random, it should not be advised and influenced by one person or 2 people. It has to be brainstormed, your decision. आपका खुद का होना चाहिए. So there's a question that मैंने बोला था ethics और essay में you have to invest your time. So there's a question that how should we have to invest our time in these. Okay, so I'll tell it in brief because I think this was more focused on optional, but I'll still address this in brief. So see, ethics in essay के लिए specific, I'll start with essay first. So essay के लिए what is important is your flow and structure of the essay. ठीक है, लोग बोलते हैं बहुत फ्लारी लैंग्वेज लिखनी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. यू कैन राइट सिंपल लैंग्वेज इन वट एवर मीडियम दैट यू चूज टू राइट इट इन. वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज हाउ यू मेंटेन योर फ्लो इन योर एसे एंड हाउ यू स्ट्रक्चर योर एसे. ठीक है, जो टॉपिक है उससे आपका एसे कितना रेजोनेट होता है और कितना नहीं होता है, आप अप्रोप्रिएट डायमेंशंस खोल पाते हैं या नहीं खोल पाते हैं. ठीक है, सो व्हाट यू डू विद एसे इज आप पहले PYQs देखिए एसे के भी कि क्या टॉपिक्स आ रहे हैं. नाउ इन द रीसेंट ईयर्स फिलोसफिकल एसेज पे ज़्यादा फोकस हो गया है एज कम्पेयर टू योर GS एसेज. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रेक इट डाउन ऑल्सो. बट जो आपके फिलोसफिकल एसेज हैं उसमें आप हाउ, वॉट, व्हेन, वाई इसके अंदर उसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हम इसको क्या कर सकते हैं इसके लिए. ठीक है, सो दिस इज you have to break down your essays in a certain way and you have to structure it in a particular way, right? So अपने essays को लिखना शुरू करिए because पहले बात तो वो 1200 words लिखना ही बहुत difficult हो जाता है कई बारी. ठीक है, so start writing, you'll eventually improve. For ethics के लिए एक तो आप जो करंट में पढ़ रहे हैं चीज़ें, a lot of it can be used in example for your ethics papers. ठीक है, so start making a repository अभी से उन examples की.
ठीक है, आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 1-2 न्यूज़ पक्का आपको मिल जाएँगी जो किसी न किसी वैल्यू या किसी न किसी चीज़ से आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो उन सब की रिपॉज़िटरी बनाना शुरू करिए एंड एथिक्स के लिए आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। द मोर यू राइट एथिक्स द बेटर यू गेट एट एथिक्स। ठीक है, सो टॉपर कॉपीज़ देखिए, पीवाईक्यूज़ देखिए और उनको खुद से लिखिए और कंपेयर करके देखिए कि टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं और आप कैसे लिख रहे हैं। एथिक्स इज़ अ प्रैक्टिस, इट्स एन आर्ट दैट यू लर्न विद प्रैक्टिस। सो आई थिंक दैट So we are concluding the session, and those who are out of station watching online, they can send their queries to the mail. Thank you very much. अगर आपके फिर भी कोई डाउट होंगे ना, we are always there. You can approach us. Concerned teachers के साथ approach कर सकते हैं. Wish you all the best. Thank you. उड़ता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आँधियाँ। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया।